a very, very, very warm good evening to each and everyone. And I hope that I'm very much visible and I hope I'm audible to you guys. And if you are joining me, just send me hi, hello, whatever comment section mein zarur hi, hello kariye so that I can get to know that you can see me and I'm visible to you, I'm totally audible to you. So if you are joining, just send me hi or hello. You guys know कि Facebook पे ये जो सेशन होता है कभी कभार टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं सो प्लीज सेंड मी हाई और हेलो इफ यू कैन सी मी एंड आई एम रियली एक्साइटेड for this particular session. So if you can see me, do join me, send me hi, hello, and second thing, आप कहाँ से join कर रहे हो? Do mention me that also. Let me check if you can see me or not. एक बारी मैं एक बारी check कर लेती if I am visible to you guys or not, because I can't see anyone joining. Let me check that out first. Okay. So I guess I am visible now, and again a very, 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 very warm good evening to everyone. I hope now I am visible and now I am audible. अगर मैं आप लोगों को दिख रही हूँ तो do join me here and send me your hi and hello so that मैं आपसे directly यहाँ से hi hello कर पाऊँ and मैं आपसे बात कर पाऊँ. Because I know sometimes मुझे पता नहीं चलता है you guys have joined or not. So do send me your hi and hello guys. And as you guys know कि आज मैं बहुत बहुत excited हूँ for this session. Someone special is here. I am really excited for him and I'm really happy that he agreed to do this live session with us. So yes, I want कि आपके जो भी questions है ना, do put that in the comment section ताकि मैं directly उनसे पूछ पाऊँ. And आज का जो हमारा session है उसका टॉपिक है दैट इज सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी. उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, काफी ब्रीफ तरीके से डिस्कशन होगा. सो पहले मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में हाय हेलो जरूर करें. एंड एज यू गाइज ऑल्सो नो कि हमारे पास सिर्फ 1 आवर होता है. आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट. सो send me a question. So hi, Shanti Sagar is here. Thank you for joining me here. And I know it's evening time है, बहुत लोग घूम फिर रहे होंगे, बहुत लोग बाहर होंगे. But if you're joining me, send me your hi and send me your location कि कहाँ से आप join कर रहे हो. So hello Champa Soni, I am good. Shanti Sagar, I hope you are also doing well. So yes, आज का सेशन का टॉपिक तो मैंने बता दिया, that is spiritual success through spirituality. But before that, I want to give a brief introduction about our guest today. As I said, I am really excited. I'm really happy that he said yes to do this live session with us. His name is Ketan Bhagat ji, and I really admire him. काफी चीजें मैंने उनके बारे में पढ़ी है, जाना है और बहुत कुछ सीखा भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका. तो ही इज अ राइटर. उन्होंने हाल ही में 2019 में बुक, नेटफ्लिक्स की एक मूवी आई थी अपस्टार्ट्स, वो उसके डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले लिखा था. साथ ही साथ उन्होंने अभी हाल में कुछ टाइम पहले एक 2-3 बुक्स भी लिखी. इज ऑल्सो एन ऑथर लाइक कन्वीनियंट, complete convenient and child god. So I'm sorry if I've mistaken the name. And he साथ ही साथ he's a TEDx speaker, साथ ही साथ he's a motivational speaker, and कहीं मैंने पढ़ा था he's also, he has a very good sense of humor. So I am really excited that we share that bond और काफी conversation अच्छा हमारा जाए. So without wasting any other single time, I want him कि वो हमें join करे and then we can continue with this. So yes, I am just putting the camera on him and let's see. Hello sir, good evening. Hello, everyone, and very nice introduction, Sukul. Thank you. अब Right. सैटरडे इवनिंग में इस बुड्ढे को सुनने से अच्छा है एक छोटे से बेबी No, को no, ही no, no, रखो. don't tell me. See, I said his sense of humor. So it's not like that. I am really excited. As I told you, I'm really excited for this one. Yeah. And so sweet to of everyone who has joined. It is really amazing that you've called me. We have only 1 hour, so I Yeah. will quickly go into my presentation, and then Sure. when the question and answer comes, you can ask any questions to me and to my son also. Of course. Hello, Shanti Sagar ji. So let's get to the PPT. Yes, once. Okay. So first of all, I want to know his name. I don't know his name. What is your name, boy? Boy?
Can name you is hear me? Rian. Yeah, I can hear Oh, you. hi, Can you hear us? Rian. So, guys, you can tell in the comment section, hi, Rian. I love that. So we cannot see the comment section now, but I hope you can see my presentation. Yeah, I can see I can see the comment section. I think you will be also able to see the comment section. And guys, let me tell you, sir is going to share a PPT with us. वो हमारे साथ एक PPT share करेंगे and उसके through he'll explain things. तो please PPT पे भी ध्यान दीजिएगा and comment भी साथ में करिएगा and end में आप questions भी जरूर put करिएगा related to that topic. So yes, we can start Okay, that. thank you so much. So, like I said, my name is Ketan Bhagat. Usually, तो मेरे को चेतन भगत का भाई बोलते हैं. So you would, हाँ I जी, ये hope, बिल्कुल. you would know Chetan Bhagat. Of course. And I am really proud of my brother. He's so successful. Yeah, And I have thank you. also, like many writers, got inspired. I also got inspired, and I've written 2 books, Child of God and Complete Convenience. I don't know if you can see the screen. And I have written, like you said, a movie as well, which is on Netflix. You can see that. How to get success in life, that's the topic. And a lot of people tell you many ways to get in success in life. For me, life में आपको spirituality के through success मिल सकता है. And that is the topic I would like to cover. Now, before I get into spirituality, which आपको लग रहा है बड़ा boring topic है, which is No, no, not, not at all. I will tell you how we lead our life, how all of us lead our life, how I have led my life, and probably Rian will lead life, and how most of you will lead Yeah. life. And so पहले हम पैदा होते हैं एकदम क्यूट से, प्यारे से, नंगे फुंगे से, you know, and we have that Yeah. beautiful toothless smile. And you know, ये जो फॉर्म है, ये जो हमारी फॉर्म है, इमेजिन कीजिए आज एलॉन मस्क दुनिया Yeah. का रिचेस्ट आदमी है. Richest. He was Totally. born like this, and Yeah. I was born like this, and Sufal, you were born like this. So when we all start, we start the same. Exactly. And इस टाइम पे दुनिया के हर बच्चे का probability of success is the same, correct? As you grow up, probability कम होती जाती है. लेकिन जब हम स्टार्ट होते हैं, जब भगवान ने फ्रेश फैक्ट्री से माल भेजा होता है नीचे धरती पर, Yeah. तो फिर क्या डेस्टिन्ड फॉर सक्सेस. फिर कहाँ गड़बड़े शुरू होती हैं, कैसे Exactly. गड़बड़े हो जाती हैं लाइफ. पैदा होने के बाद हमें जो पहली चीज मिलती है, एक बिजनेस केस मिलता है कि देखो पढ़ाई कर लो, अगर पढ़ाई नहीं करी तो आप कुछ नहीं बन पाओगे. एंड यू नो Exactly. सुफल, ये दुनिया के हर बच्चे इंक्लूडिंग माय सन जो सुन रहा है, वो भी रोज लड़ाई करता है कि आप लेक्चर्स में तो एजुकेशन की बुराई करते हो पर मुझे स्कूल जरूर भेजते हो, राइट? बट जिंदगी में अगर आप 75 ईयर्स जियोगे तो 25 ईयर्स तो पढ़ाई का ही रोना लेके बैठे रहते हो, राइट? बिल्कुल. एटलीस्ट फर्स्ट 20-21 तक, उसके बाद मास्टर्स एंड ऑल सेट करने लगते हो. एजुकेशन एम्पावर करेगा, एजुकेशन की वजह से ही आप बनोगे जो बनोगे. एजुकेशन है तो आप कुछ हो. ये बिजनेस केस हम सब पे थोपा जाता है, और एजुकेशन काफी डिफिकल्ट चीज है. यू नो, ये बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं है. बच्चे को तो पढ़ना ही पड़ता है, रात दिन वो बेचारा रट्टा मारता है, चीजें समझता है, ही हेट्स इट. लेकिन बिलीव मी, मैं एक पेरेंट हूँ, पेरेंट के लिए भी एजुकेशन बड़ा डिफिकल्ट है. रोज सुबह Exactly. जल्दी उठो, उसे तैयार करो, उसकी फीस भरो, उसका होमवर्क कराओ, वो वहां जाके अगर शैतानी करता है तो फिर डांटे खाओ, यू नो. और Exactly. यू नो, फीस भरना कोई सब्जी खरीदने जैसा तो होता नहीं है कि भैया हमने तो ज्यादा खानी नहीं है तो ज्यादा पढ़ना की क्या जरूरत है, उतनी फीस लगती है. Exactly. Exactly. गलत Yeah, बात right. है ना. जो बच्चा कम पढ़ता है उससे स्कूल को कम फीस लेनी चाहिए, राइट? ज्यादा पढ़ता है उससे ज्यादा फीस लेनी चाहिए, लेकिन Exactly. होता ऐसे नहीं है. और जो टीचर्स हैं उनका सोचो, घर में एक नहीं संभलता, वो 40-40 संभालती है. सो एजुकेशन एक टॉर्चर चेम्बर है जो हम Yeah. 20-25 साल सहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्ड्स हमें चाहिए, एजुकेशन एम्पावर्स. और आप सब भी पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई की वजह से ही सक्सेस मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है. रादर उल्टा है. आप रियल लाइफ में जब देखोगे तो Yeah. मोस्ट लाइक जहां भी आप दुनिया में रह लो, जो उस जगह का राजा होगा, जो उस जगह का हीरो होगा, स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होगे, उसका मालिक जो होगा,
मोस्ट लाइकली वो सब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। एग्जैक्टली। इस कंट्री में मेरा एक वीडियो नहीं चला, बट विराट कोहली इज द कैप्टन और वो 11वीं पास है, और आमिर खान इज द हाईएस्ट पेड एक्टर और आमिर खान 12वीं पास है। और जो प्रधानमंत्री हमारे हैं जिनको पूरा देश वोट करता है, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हराया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिशियन। या मैं अगेन एजुकेशन की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एजुकेशन की वजह से सक्सेस गारंटीड नहीं होता। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि ये एक साइकोलॉजी की थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें आप गूगल कर सकते हैं, तो मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग सिखाऊंगा। बट बेसिकली जो सर्कस में शेरों के साथ किया जाता है कि उन्हें ओवर अ यस। पीरियड ऑफ टाइम भुला दिया जाता है कि वो शेर है। या तो वो एग्जैक्टली। उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन से भी डर लगता है, जबकि वो चाहे तो उसे खा सकते हैं। लेकिन वो जो शेर है उसे लगता ही नहीं कि वो शेर है। और ऐसे ही हम आधी से ज्यादा जिंदगी एजुकेटेड लोग, हम जॉब के कंफर्ट में, हम कोई सोसाइटी के कंफर्ट में, कोई प्रोटोकॉल के कंफर्ट में डरे रहते हैं। जबकि एग्जैक्टली। जब बाहर सोसाइटी, सड़क पे बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली जो हैं वो हैं। जो शेर है जिसने जंगल में शिकार किया है, उसे पता है कि कैसे अटैक करना है, मेरे में कितना दम है, सामने वाले में कितना दम है, कैसे शिकार करना है। तो नेचुरल सी बात है, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। इसीलिए हम लोग एजुकेटेड लोग जितनी से फेसबुक या ये लेक्चर कर लें, हम सड़क पे मोर्चा नहीं कर पाते, हम कोई भी रेवोल्यूशन खास नहीं ला पाते, बिकॉज हम सर्कस चाहते हैं। पहले सर्कस का एनवायरनमेंट होगा तभी हम डांस कर पाएंगे। करेक्ट। और ये पहला मेरा लेसन है कि आप अभी पहले पैदा हुए और पहले 25 साल आप पे ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी, ताकि आप वो सर्कस के जानवर बनोगे। और फिर आप रिंग मास्टर होगा, कभी आपका बॉस, कभी आपकी वाइफ, कभी आपका पति, कभी आपके बच्चे, कभी आपके माँ बाप, कभी सोसाइटी में कोई और, उसकी ट्यून्स पे आप डांस करोगे। आप शेर हो ये तो आपको भुला ही दिया जाएगा पहले 25 साल। उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकल के नॉर्मल जिंदगी में आओगे, हाँ। भी नहीं समझ आएगा कि आप शेर हो। क्योंकि इंडिया में जैसे ही आदमी पढ़ लिख के कुछ बनता है, सोसाइटी उस पर इतने पागल हो जाती है जैसे कि दुनिया का पहला और आखिरी इंसान है जिसने पढ़ लिख के कोई अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। लोग एग्जैक्टली। क्रेजी हो जाते हैं। पहले 20-25 साल इंडिया में आपको पकाया जाता है, पकाते रहते हैं, वो आपकी डिश बनाते हैं। उसके बाद जैसी डिश बनती है वो बाजार में बेची जाती है, आपका एक एक टुकड़ा बेचा जाता है। आप जैसे ही जवान हो जाएंगे, आपकी पहली सैलरी आएगी, दुनिया का हर इंसान आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको लोन दिया जाएगा, आपको करियर दिया जाएगा, आपको कार लोन, हाउस लोन, वेकेशन, क्रेडिट्स। सब कुछ मिलेगा आपको। जो जो चीजें मना थी वो सब अलाउड हो जाएंगी। अब आप इमेजिन कीजिए, एक इंसान जिसने 20-25 साल सिर्फ पढ़ाई की है, जिसे हर बार रट्टा रट्टा रट्टा, उसने कभी कुछ और सीखा नहीं है, अचानक से उसको जो जो चीजें मना थी, डांटे पड़ती थी। मैं जब छोटा था तो मैं तो पढ़ाई में बड़ा नालायक था, और मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट था। अब आपको पता नहीं है, घर में जब एक के नंबर अच्छे आते हैं तो जिसके गंदे आते हैं वो और भी गंदा लगता है। मुझे पता है, तो मुझे मेरे को पता तो चीजें मिलती ही नहीं थी। ठीक है, है। या मेरे को तो हमेशा डांट ही एग्जैक्टली। पड़ती थी। घर में या अगर एक चॉकलेट आती थी तो उसको मिलती थी कि भाई वो टॉप हाँ करता है, हमें एग्जैक्टली। चॉकलेट का रैपर मिलता था कि भाई तुम नालायक हो, जब नंबर आएंगे तो चॉकलेट मिलेगी। ठीक है। राइट। हमारे पापा के पास एक खटारा सा बजाज का स्कूटर था। हम दो लड़के थे, हमें स्कूटर चलाने का शौक था। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अगर उसके नंबर ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्कूटर अच्छा चला सकता है। लेकिन उसे स्कूटर दे देते थे, मुझे स्कूटर देते नहीं थे। ठीक है, क्योंकि तो नंबर ला तो स्कूटर मिलेगा। ऐसे हम सब पलते बढ़ते हैं। और फिर जब मैं बड़ा हो गया और जब मैं कुछ कमाने लग गया तो सडनली मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई, मेरे को मिस्टर भगत कहने लग गए लोग, मेरे आगे पीछे घूमने लग गए लोग। अभी मेरे को क्या अकल, जिस आदमी को कभी इज्जत नहीं मिली उससे कहाँ इज्जत हजम होगी। इसलिए 20s में इंडियंस आर वेरी एक्साइटेड, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज उनके साथ अचानक से इतना ज्यादा इज्जत वाला माहौल पेश हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। और वो इंजॉय करना शुरू करते हैं, और उस समय जो उनसे कहा जाता है वो करते हैं। आप देखना 20s में आप एक करियर ले लोगे, ज्यादा सोचोगे समझोगे नहीं। आप एक लोन ले लोगे, ज्यादा सोचोगे समझोगे नहीं।
आप एक शादी कर लोगे, ज्यादा सोचोगे समझोगे नहीं, आपको पता भी नहीं होगा शादी चीज क्या होती है। बस ये है कि 600 लोग आके ऐसे डांस करेंगे जैसे कि आपकी तो शादी हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। और उसके बाद वो ऐसे गायब होंगे कि 600 साल तक आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। और ये सिर्फ शादी क्या होती है, ये शादी होने के बाद पता चलता है। उससे पहले तो एग्जैक्टली। 2-3 साल पार्टियां, और यहाँ खाना होगा, और ये कपड़े क्या पहनेंगे, और घूमना। यहाँ जाएंगे। 20s तो आपकी पार्टी करने में निकल जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले 20 तक पढ़ाई करने में निकल जाएंगे, फिर 20 से 30 तक आपको समझ नहीं आएगा, बट आप पार्टी करने में निकल जाओगे। एक एक टुकड़ा आपका बेचा जाएगा, और जैसे ही बिक जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और बहुत जल्दी 30s आ जाएंगे। और 30s एक बड़ी विचित्र होती है। अभी 30s में पहली बार जिंदगी में आप जो है, आपका सोसाइटी ने जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, अब वो तुम्हें साइड पे फेंक देती है। मैं इसे राहुल गांधी फेज ऑफ लाइफ कहता हूं, जहां आप हो पर आप नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आज मैं आपको सच बताऊं, आज मैं 43 का हूँ, सोसाइटी को मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे को याद किया जाता है जब रियान भगत का कोई बिल नहीं पे किया होता, या उसने कोई शैतानी की होती है, या कोई और वो गड़बड़ बहुत हो। ज्यादा होता है। हाँ, और या फिर कोई गड़बड़, घर में कोई गड़बड़ हो तो मेरे को याद किया जाता है। अदरवाइज मेरे को कोई लड़की नहीं देखती, मेरे को कोई आदमी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब कहते हैं भाई इसका जो बिकना था बिक गया, जिसका जो होना था हो गया। करियर में आप फंस चुके होते हो, 20 साल के लोन आप ले चुके होते हो, और शादी में भी आप फंस चुके होते हो। ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है, इससे हर कोई गुजरता है, और जब गुजरता है तो अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। आई कॉल दिस फेज The बिग big बॉस boss. फेज ऑफ लाइफ, एंड ओके। बिग बॉस फेज ऑफ लाइफ इज या। व्हाट मोस्ट इंडियंस आर गोइंग थ्रू। इसीलिए हमें बिग बॉस पसंद आता है। बिग बॉस प्रोग्राम क्या है, वो उन लोगों को लेते हैं जिनका कुछ नहीं हो पाया, लग रहा था कुछ होगा बट हो नहीं पाया। वो अंदर से भरे हुए लोग होते हैं, और उन भरे हुए लोगों को वो फिर एक प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में डाल के उनकी भड़ास निकालते हैं, जिसको हम एंटरटेनमेंट मानते हैं। बट अगर आप सच्ची में देखें तो इंडिया की हर सड़क पे बिग बॉस ही है। किसी की भी गाड़ी, किसी की भी स्कूटर, बाइक को आप छू दीजिए, वो बिग बॉस कंटेस्टेंट बन जाएगा। वो आप पे इतनी भड़ास निकालेगा, इतनी भड़ास निकालेगा, जैसे कि पता नहीं उसकी जिंदगी बर्बाद करने का सोल रीजन आप है, ठीक है। एग्जैक्टली। या। क्यों हर कोई लड़ने को उतारू है? क्योंकि अंदर से गुस्सा भरा हुआ है। क्यों अंदर से गुस्सा भरा हुआ है? क्योंकि पहले 20 साल उसको जीने नहीं दिया, और 10 साल कुछ ज्यादा ही बेच दिया उसे, और अब उसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब वो बस जिंदगी झेल रहा है। ये तो फ्रस्ट्रेशन है ही। साथ बाय साथ आपके कुछ कॉलीग्स होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, पियर्स होंगे, जो ये सब नहीं करेंगे, जो शुरू से ही कुछ अलग से जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। और शुरू में जिंदगी के आप उनका बड़ा मजाक उड़ाएंगे, जिनके नंबर कम आएंगे, जो को हमेशा डांटे पड़ेंगे, जिनको क्लास से निकाला जाएगा, जिनका बोला जाएगा कि ना ये पढ़ाई में अच्छे हैं, ना स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये सुंदर भी नहीं है, ये बोल भी नहीं सकते, इनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। लेकिन जिंदगी जैसे जैसे बढ़ेगी वो अच्छा करने लग जाएंगे, कुछ अलग करने लग जाएंगे। और हो सकता है वो सोसाइटी में कुछ ऐसे काम करे जो आप सोचना सपना ही होगा आपका। अब ये मिलन सुमन को देखिए, अपनी जवानी में ये टॉप मॉडल रहे, और आज भी देखिए ऐश कर रहे हैं। इनकी जो बीवी है वो इनकी 26 साल छोटी है शायद इनसे, एग्जैक्टली। जनरेशन। जनरेशन छोटी है, लेकिन वो खुद अपनी खुशी से रह रही है। इन्होंने अपनी जिंदगी में 50 साल या कुछ तक तो शादी भी नहीं की, कहाँ तक आज तक बच्चा भी नहीं किया, बिल्कुल अलग करियर बनाया। और ना ये कोई नेता है, ना कोई अभिनेता है, ना कोई सिंगर है, ना आर्टिस्ट है, बट अपने टर्म्स पे जिंदगी जी है। आपका भी मन करेगा 50 में तो शायद आप अपनी बेटी की शादी करा रहे होंगे, राइट। तो अलग लोग जीते हैं। और मैं सिर्फ आदमियों की बात नहीं कर रहा, लुक एट मलाइका अरोड़ा टुडे। उनकी जो, उन्होंने सलमान खान की फैमिली में थी, और वहां से उन्होंने अलग होकर अपनी राह चुनी है। वो कोई टॉप की हीरोइन नहीं है, वो कोई अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने को तैयार है। बट मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा। एक लॉयर हरीश साल्वे, जो टॉप का लॉयर है इंडिया का, आई गेस वो सब। पीपीटी वर्क कर रहा है। Should मैं उसे दिखाऊं क्या स्क्रीन पे? इज इट सॉरी, रिक्वायर्ड पीपीटी? यू वांट कि? यस आई एम शोइंग द पीपीटी, कैंट यू सी द पीपीटी? आई कांट सी द पीपीटी, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। अरे पीपीटी तो चल रही है। चल रही है, एक मिनट रुकिए।
Okay. अच्छी चल रही है। I think Can you now it s- is visible. Continue from here. Oh God. I think PPT is not there. अभी now it is visible. अभी तक पीपीटी चली नहीं थी? नहीं, वो नहीं visible थी. और एक मिनट, मैं फिर से ट्राई, अभी आपको दिख रही है? हाँ, मुझे दिख रही है. Can you guys see the PPT? Same yes. I think हाँ Saurabh is saying yeah show हो रहा है अभी show हो रहा है. I hope so far you were able to see the PPT because I've हाँ, been running up. continue because PPT की वो ही नहीं थी. We were so imagination and आपकी कहानियों में लगे हुए थे. So keep on going. Yeah. Can you see now the PPT Milind Yeah, Soman yeah. की photo? Yes, yes. We can see. And now can you see Malaika? Yeah. अभी मलाइका ने भी हरीश, मिलिंद सोमन दिख रहा है. अब मिल हरीश साल्वे की दिख रही है आपको? No, it is not changing. मुझे बस मिलिंद हाँ अभी दिखी. Yes. Now I can see. इसे ऐसे ही रखते हैं, ठीक है? Okay, हाँ. अभी दिख रहा है हरीश साल्वे? हाँ जी. चलिए, हरीश Yes, we साल्वे, can see. सो इवन हरीश साल्वे टॉप हम्म. मोस्ट लॉयर है इंडिया के, सबसे बोरिंग प्रोफेशन है वकील होना। आप किसी भी कोर्ट में जाइए, बाहर खड़े होते हैं, मांग रहे होते हैं कि केस दे दो, केस दे दो। Yeah. और उन वकील ने एट द एज ऑफ 65 ही हैज डिसाइडेड टू गेट मैरिड अगेन। तो जिंदगी में बहुत लोग हैं, एक तो आप हो गए जो पढ़ लिख के 30 साल में फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे, बिग बॉस की जिंदगी जी रहे होगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो जिंदगी कुछ अलग तरीके से जिएंगे और उसके बिल्कुल. बाद वो आपको दिखेंगे बाद में लाइफ के कि यार वो तो काफी ऐश कर रहे हैं, काफी हम्म. ज्यादा ऐश कर रहे हैं, ठीक है? अब ये सब जब होगा तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगे, बहुत ज्यादा, है ना? और जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो क्या करते हो? पार्टियों में जाके, आपके सबके कोई अंकल जीजा जी होंगे ऐसे जो हमेशा दुखी रहते हैं, वो पार्टियों में मिलते हैं, ड्रिंक लेते हैं और बोलते हैं यार ये भी चोर है, वो भी चोर है, सब चोर हैं, इसने गलत किया, मुझे सब पता है अंदर की कहानी। आप भी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बहुत से इंडियंस हैं जो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और गुस्सा करते हैं। आप भी करेंगे, और जब आप करेंगे तो क्या होगा? आप वापस अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, आप टीचर्स के पास जाएंगे। बहुत से इंडियंस जो है 20s में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि हनीमून का जोश चढ़ा होता है, बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर वो शादी के 10 साल बाद वापस माँ बाप के पास आते हैं, बोलते हैं यार आप सही कह रहे थे, ये बेवकूफ़ी है, मुझे नहीं इससे शादी करनी चाहिए थी, या आप सही कह रहे हो, मुझे ये प्रोफेशन नहीं चुनना चाहिए था। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन उस टाइम माँ बाप बड़े चालू होते हैं, सोसाइटी बड़ी चालू होती है। सोसाइटी ये नहीं कहती कि बेटा आपने पढ़ाई लिखाई की तो डोंट वरी। उस टाइम सोसाइटी पढ़ाई लिखाई का बात भी नहीं करेगी आपसे, सोसाइटी कहेगी बेटा ये सब भगवान के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। आपको स्लाइड दिख रही है? बिल्कुल. गुड वन. या. वो बोलेंगे बेटा ये सब भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, तू टेंशन मत ले, ये वो करते कराते वो इस टाइम पे आपको भगवान के रास्ते डाल देंगे। आप कहोगे चल यार भगवान का ही नाम ले लेता हूँ, वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा और हर जगह है। जैसे ही आप 30, 35, 40 साल की उम्र में भगवान की तरफ बढ़ेंगे, इंडिया में एक और इंडस्ट्री है जो आपको गले लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। एग्जैक्टली. आज जाओ आज। इस तरीके से आपका दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाएगा और आप जिंदगी बड़े ही वियर्ड वे में जियोगे। एंड दैट इज द वे मोस्ट ऑफ अस लिव इन इंडिया। We just think we should get good marks and we should study and then we will be good, and that can only take us till 30, 35 at the most. It can only get us survival skills, not successful skills. सक्सेस पाने के लिए आपको जिंदगी समझनी होगी, दुनिया कैसे चलती है, दुनिया के लॉज क्या हैं, हाउ कैन you use those laws to become successful. Now I cannot make you successful. अगर मेरे पास वो क्षमता होती तो मैं खुद ना हो जाता, आपको भी बोलता, लेकिन मेरे को रास्ता पता है और वो रास्ता मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी है। नाउ स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन नहीं है, इट इज मच मोर देन रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है फिलॉसफी, दुनिया चलती कैसे है, व्हाट वर्क्स। दुनिया में कुछ लॉज हैं, हजारों साल से वो चल रहे हैं, तो वो क्या लॉज है, क्या वो लॉज अपनी जिंदगी में अप्लाई करके कैन वी मेक अ डिफरेंस और नॉट। तो मैं आपको 15 मिनट में स्पिरिचुअलिटी तो सिखाऊंगा नहीं,
बट मैं आपको एक दो लॉस बताऊंगा, और अगर वो लॉज आपको लगे इंटरेस्टिंग है तो फिर आजकल तो गूगल स्पिरिचुअलिटी मतलब हर जगह है, तो यू कैन ऑलवेज परसू. आई विल जस्ट ट्रिगर द थॉट इन. ठीक है, Mhm. यू कैन सी द स्लाइड ना. Yeah, we can see the slide. दिख So रही है. I'll just show you two laws. Okay, just two laws. First, I will tell you a law, a Hmm. power actually. The power is indifference. Difference. Okay. जिंदगी में ये जो शब्द है इनडिफरेंस, ये Hmm. कभी सिखाया नहीं जाता हमें. और आप देखना जिंदगी के शुरुआत में तो उल्टा सिखाया जाता है कि हर चीज में घुसो, हर चीज से Hmm. अटैच हो जाओ. और Hmm. जिंदगी के एंड में किसी भी बुजुर्ग इंसान से मिलिए, उसका एक ही जवाब होता है, आई डोंट केयर, मुझे क्या लेना Hmm. था भाई. वी Hmm. ऑल बिकम डिटैच्ड फ्रॉम लाइफ इन द एंड. बट Hmm. अगर यही डिटैचमेंट जिंदगी में पहले आ जाए ना, तो बहुत फर्क आ जाता है. Okay. देखिए, गीता में लिखा है, सिंपल मैं आपको बोलूंगा, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा. आपको लड़ाई करनी है लड़ाई की खातिर, Hmm. इसलिए नहीं कि मुझे जीतना है या हारना है. Okay. आपको लड़ना है लड़ने की खातिर. Hmm. मटी स्कूल में पेरेंट्स, बिजनेस में, जॉब में कहेंगे लड़ो वहां जहां जीत सको. बैटल्स आर टू बी फॉट विच कैन बी वन. और अगर हार रहे हो तो भाग जाओ. ये मटीरियलिज्म सिखाता है. True. स्पिरिचुअलिटी कहती है छोड़ो ना यार, तुम जीतो या हारो, तुम लड़ो ना, देखी जाएगी. और ये बार बार कहा है. इन डिफरेंस पे काफी लाइनें हैं, बट मैं आपको ज्ञान नहीं देता, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ. Hmm. ये इंसान अगर इनडिफरेंट होता ना, तो आज हमारे बीच होता. Exactly. ये प्रॉब्लम है. अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म में सक्सेसफुल भी हो जाओगे, लेकिन Hmm. अगर आप उसमें घुसे रहे, उसके Hmm. हाईज एंड लोज में अफेक्ट होते रहे, तो एक दिन आप भी उसका विक्टिम बन जाओगे. बिल्कुल. जिंदगी में आप उस चीज में सक्सेसफुल होते हो. गाड़ी आप तब चला पाते हो जब आपको सच्ची में परवाह नहीं की गाड़ी ठुक तो नहीं जाएगी. Yes. आपको कभी कोई मिला है जिसको अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है? वो गाड़ी इंजॉय ही नहीं कर पाता. उसको बिल्कुल. यही टेंशन होती है कि साफ है, कहीं किसी Hmm. ने क्रैश तो नहीं मार दिया. वो होते हैं ना लोग जो पार्किंग में ही आधा घंटा लगा देते हैं, वो जो होते हैं तो. अगर आप जिंदगी में कुछ ज्यादा ही घुसे होगे ना, तो आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे. जिंदगी से थोड़ा बाहर निकलिए, तो आप जिंदगी से खेल पाओगे. Hmm. इसलिए मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप हीरो है. वो हार चुका है इलेक्शन, उसका Yes. बैंड बज चुका है, लेकिन वो अभी भी लड़ रहा है. मैं नहीं छोड़ता, मैं नहीं रिजाइन करता. काफी बेशरम आदमी है, कितना इनडिफरेंट है. और अगर आप Hmm. डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री देखो, इसमें कोई टैलेंट नहीं है उस आदमी में. उसने बिजनेस में बेड़ा गर्क किया, उसने Hmm. पर्सनल लाइफ में बेड़ा गर्क किया, लेकिन वो लड़ता है, बहुत लड़ता है. और जहां जहां लड़ाई कर सकता है करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीतू या हारू, वो लड़ता है. ऐसे ही एक और इंसान है अभिषेक बच्चन, पिछले कितने सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन Exactly. ये आज वो बड़े हीरो हैं सुशांत सिंह राजपूत से. अमिताभ बच्चन का बेटा होना कोई मजाक है क्या? लेकिन Hmm. देखिए, उन्होंने ऐश्वर्या राय जैसी वाइफ भी मिली है, अमिताभ बच्चन जैसे फादर का वरदान भी है, और आज भी जी रहे हैं, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, बच्ची है. सो मैं ये चाहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत ना बने, थोड़ा सा बेशरम हो जिंदगी में, थोड़ा सा Hmm. थिक स्किन हो लाइफ में, Good. और लड़ें. इट डजेंट मैटर यू आर सक्सेसफुल और नॉट, व्हाट मैटर्स इज हाउ ब्यूटिफुली यू आर फाइटिंग. Hmm. ठीक है, Exactly. दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज नॉट I ज्ञान. think this particular thing ये बहुत important है. I'll be talking about the youth and everyone to hear this being indifferent. I think ये concept शायद मैंने सुना नहीं था and this really touched me. And ये आगे जो मेरे लाइफ में या आगे जो मैं सोच रही हूँ, I think this got ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है मेरे थिंकिंग को लेके. So really this I don't know about the viewers जो देख रहे हैं, but really sir, this is gonna stick and I know
this will make a difference in my मेरे future के decisions में. तो yeah, thank you for Thank sharing this particular thing. Yeah, exactly. I'm glad. We can continue. 99% of our problems in life are because we care. Yes. And 99% of the things in life are not worth caring about. आप अगर न्यूज चैनल खोलो, वो उन बातों पे लड़ रहे होते हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है. किसी यूनिवर्सिटी की छत पे भारत का झंडा लहराना चाहिए या नहीं, इस बात पे वो 1 घंटा लड़ते हैं. क्या फर्क पड़ता है लहराए या ना लहराए, कोई फर्क नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं उससे. Exactly. आप अपनी जिंदगी के साथ वो खेलना खेलें, दैट इज ऑल. ठीक है, ये पहला लेसन था. मैं आपको दूसरा लेसन देता हूँ, एक्सीलेंस का. दुनिया में रिलीजन बोले जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. दुनिया में सिटीजनशिप बोली जाती है, वो अमेरिकन है, वो ऑस्ट्रेलियन है, मैं इंडियन हूँ. कलर बोला जाता है, वो ब्लैक है, वो वाइट है, वो ब्राउन है. पर दुनिया में कुछ फर्क नहीं है. दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं. एक जो एक्सीलेंट होता है अपनी फील्ड में, और दूसरा जो एक्सीलेंट नहीं होता है अपनी फील्ड में. एक ही धर्म है हम सबका, एक्सीलेंस. दैट्स ऑल. जो भी करें अपनी जिंदगी में, जो भी करें आप, उसको ऐसे करें कि दुनिया में आपसे बढ़िया वो कोई ना कर पाए. यही आपका धर्म है, यही आपका कर्म है, यही आपकी रिलीजन, पेट्रियोटिज्म, सिटीजनशिप, ब्रांडिंग, वॉट एवर यू कॉल इट. पहली चीज थी लड़ना. आपको लड़ना है बिना परवाह किए कि आप जीतोगे या हारोगे. और दूसरी चीज है कि लड़ते वक्त ऐसे लड़ना है कि आप जैसा वॉरियर दुनिया में पैदा नहीं हुआ. क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि जब जब जो बेस्ट होगा दुनिया में, वहां उस बंदे में मैं घुस जाऊंगा. ये बात ध्यान से सुनिए, परमात्मा ने स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि जब जब आप ह्यूमन रेस में एक्सीलेंस देखते हो ना, उस टाइम पे वो इंसान नहीं होता, मैं उस इंसान के अंदर घुसा होता. ये मैं आपको वर्सेस से बोर नहीं करूंगा, बट मैं एक सिंप्लिसिटी से आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं आपको सिंपल बताता हूँ. अमंग सीक्रेट्स आई एम साइलेंस, इन द वाइज आई एम देयर विजडम. ध्यान से सुनिए, इन द वाइज आई एम देयर विजडम, मतलब विजडम मैं हूं. जो वाइज आपको लग रहा है ना, उसकी विजडम एक्चुअली मैं ही हूं. Okay. अमंगस्ट सीक्रेट्स आई एम द साइलेंस. सीक्रेट की सबसे बड़ी बात क्या होती है? कि वो चुप रहता है, तभी सीक्रेट है. तो परमात्मा कहते हैं मैं हूं, मैं हूं. इससे पहले मैं आपको बोलूंगा, उन्होंने ये ऐसे एक्चुअली देखिए, चैप्टर 10 वर्स 21 से चैप्टर 10 वर्स 38 तक जाता है. तो कभी गीता में पढ़ना, भगवान कहते हैं कि भैया रोशनी में मैं सूरज हूं, रात में मैं चंदा हूं. तो ही गोज ऑन टू से कि जहां जहां जिस जिस चीज का परम है वो मैं हूं. अगर पर्वत है तो मैं माउंट एवरेस्ट हूं. इसलिए तुम माउंट एवरेस्ट जब बनोगे तो मैं हूं वो, तुम और मैं एक हो जाएंगे. तो कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कोई पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप रोटी बनाते हो तो ऐसी रोटी बनाओ कि दुनिया में ऐसी रोटी कोई ना बना पाए. तो आप रिलीजियस हो, तो आप परमात्मा से ज्यादा करीब हो, उस मंदिर के प्रीस्ट से. इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. शशि थरूर को मैं बहुत एडमायर करता हूँ. कौन सी पार्टी में है, उनकी लीडर देखिए कौन है, बैंड बजा हुआ है. लेकिन शशि थरूर को हम आज भी रिस्पेक्ट देते हैं. बिल्कुल. क्योंकि उनकी स्पीचेस में जो दम है, वो कई बार उनके ऑपोजिशन की स्पीचेस में भी नहीं होता. नहीं होते यार. ये होता है पावर ऑफ एक्सीलेंस. आज उनको कांग्रेस पार्टी की इतनी जरूरत नहीं जितनी कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत है. एग्जैक्टली. या आप कभी मत कहिए कि आपका स्कूल कॉलेज बेकार है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेकार है, आपके घर वाले बेकार है, आपके हालात बेकार है. आप में हुनर की कमी है, आप एक्सीलेंट नहीं हो. अगर आप एक्सीलेंट होगे ना, जो सोना है, सोना वो कहाँ होता है? आप कभी ब्लड डायमंड पिक्चर देखिए, खोद खोद के लोग ढूंढ लेंगे. आप सोना तो बनिए. और ऐसे बहुत पुरानी है. ए आर रहमान की कभी आपने कभी ए आर रहमान का कभी सुना ही नहीं होगा ना. वो किसी कंपटीशन में जज बनते हैं,
ना वो कभी किसी को was म्यूजिक so का ज्ञान देते हैं, वो तो कुछ बंदा बोलता ही नहीं है यार। लेकिन I haven't heard him speaking. I think I don't remember even. करेक्ट, Yeah, लेकिन हम जानते हैं ना उन्हें, हम बनना चाहते हैं ना वैसा। उनकी पावर है कि उनका जैसा म्यूजिक कोई नहीं दे सकता, जैसे गुलजार की पावर है कि उनके जैसा कोई लिख नहीं सकता। exactly. ये दोनों ने तो कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़े, इन दोनों ने कभी फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं डाली, इन लोगों ने कभी कुछ कहा ही नहीं किसी को, Hmm. लेकिन इनके अंदर परमात्मा घुस जाते हैं। इतनी प्योरिटी से ये लड़ते हैं, इनका काम है। इनकी रहमान की लड़ाई है म्यूजिक देना, गुलजार की लड़ाई है पोएट्री। वो अपनी लड़ाई में घुसे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं दो ही लेसन दूंगा, इंडिफरेंस एंड एक्सीलेंस। सिर्फ ये दो भी पकड़ लिए जिंदगी बदल जाएगी। जैसे कि आई लाइक, मेरे बेटे के फेवरेट हैं विराट कोहली जी, वो उनकी ये सोसाइटी। आई ट्राई टू बी लाइक अ मॉन्क लिविंग इन लिविंग। मॉन्क क्या होता है? जो इनडिफरेंट होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और Okay. अंदर से प्योर होता है। Hmm. इसलिए आज के लिए इतना ही, काफी बोर कर दिया, No, but no, no. indifference and this thing. And obviously you can catch me on Twitter, you can catch me on Facebook, you can catch me on Instagram. मुझे ज्यादा आता नहीं है टेक्नोलॉजी, मेरे बेटे से थोड़ा सीखता रहता हूँ। But that's was my session, and now we can stop the screen share and we can have a normal conversation. Totally, totally. Thank you so much. बीबी भी अच्छी मिलेगी वरुण जी, मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, अच्छी मिलेगी। So you're reading the comments. एक मिनट, सबसे पहली बात, I am really impressed. I think I want to state this. अभी तक का जितना भी लाइव स्पेंड किया, this has been the best. इतनी शिद्दत से, इतनी मतलब honestly I will be saying, I think सात तो जुड़े हुए actually they are stick there. वो सुन रहे हैं एक एक point, एक एक चीज, and that indifference and excellence really वो हर किसी को सुन। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा इस सेशन से, एंड मैं पर्सनली कहूंगी कि ये मेरे लाइफ का ये जो 1.5 घंटे मैंने, पौने घंटे जो मैंने बिताया, दैट हैज बीन द बेस्ट थिंग आई हैव ओ स्पेंट। बाबा, थैंक एग्जैक्टली सर, बिकॉज क्योंकि ये जो ज्ञान है, मैं ज्ञान वो नहीं बोलूंगी, बट ये जो छोटी छोटी बातें होती है, ये रियली कोई स्कूल या कोई एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं सिखाएगा। कितने भी हम सेशंस कर ले वगैरह वगैरह, बट ये यूट्यूब पे या वैसे नहीं मिलता है। एंड फेस टू फेस उस सारे एक्सप्रेशंस के साथ चीजों को बोलते हैं ना, वो विजुअल्स के साथ डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग सच लवली थिंग्स, और इतने अच्छे तरीके से आपने एक एक चीज एक्सप्लेन की। आई थिंक भगवत गीता की बात आपने की, नाउ आई एम इंक्लाइंडेड कि मैं थोड़ा बहुत भगवत गीता पढ़ूं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी वर्सेस है उसमें। So yes, and being the best, excellence and indifference, I know I'm going to try it. The indifference, most importantly, and excellence पे भी पूरी मेहनत ताकत जोर लगा दूंगी. What I'm doing, I'll be doing my best. So thank you guys also for being here. And आपके कुछ भी questions हैं तो सर से जरूर पूछे, काफी देर से सर बोल रहे हैं। I know अगर आपको पानी वानी पीना है तो प्लीज पी लीजिए। And कुछ मेरे क्वेश्चंस है, क्योंकि जैसे कि हमने इतनी स्पिरिचुअलिटी की बात की, लोगों की बात की, तो मेरा एक सवाल होता है कि आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, ऐसा कौन सा एक ह्यूमन क्वालिटी होता है इंसान में, जो आपके हिसाब से दैट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इंसान अपने अंदर पोजेस करता है? व्हाट इज दैट, इफ यू वांट टू से एनीथिंग, और कुछ क्या वो क्वालिटी होता है जो एक इंसान में होती है? या देखिए, मैंने एक बुक लिखी, चाइल्ड और गॉड। जब ये पैदा हुआ था, जब ये मेरे हाथ में आया, उन दिनों मैं बड़ा दुखी था, और वही मिडिल बिग बॉस फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहा था, और मैं दुनिया में हर चीज को ब्लेम करता था, मेरी मदर को करता था, मेरी वाइफ को करता था, और इस दुनिया में सब सबने ही गलत किया था मेरे साथ, है ना, मैं ही था सीधा साधा, मैं ही सबसे अच्छा था। उसी घर में थैंक यू चंपा जी, उसी घर में एक छोटा सा बच्चा आया, जिसके पास कोई पावर नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ बोलने की क्षमता भी नहीं, और वो इतना खुश उन्हीं घर वालों के साथ।
उन्हीं घर वालों के साथ, उसी घर में, उसी सिचुएशन में, घर में सबसे छोटा, कोई पावर नहीं, कुछ क्षमता नहीं, कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन सबसे खुश। तब मेरे को रियलाइज हुआ इस घर में बहुत खुशी है, बस मेरे को नहीं आती। इसलिए अगर आप में बचपना है, अगर आप बच्चा हो, तो वो सबसे बड़ी क्वालिटी है। बच्चे में सब कुछ होता है, बच्चा भगवान खुद आते हैं बच्चा बन के। इसलिए मैंने लिखी चाइल्ड और गॉड। चाइल्ड और गॉड जो बुक है, उसकी यही थीम थी। घर में, गीता तो थ्योरी है बुक में, बच्चा बन के भगवान आते हैं कि तेरे घर में रहूंगा, तेरे से 10 गुना छोटा होके, और नाच के दिखाऊंगा, Yeah. खुश होके दिखाऊंगा। And that is so never let the child in you go away, rather kill the adult in you, be the child. That I think is the best. I think that's a beautiful answer. ये I क्योंकि छोटा सा दिमाग है, इतना ज्यादा मैं नहीं सोच सकती, बट यस दैट्स रियली अ ब्यूटीफुल आंसर। मेरे दिमाग में कुछ चीजें, कुछ क्वालिटी चल रही थी, बट थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस आंसर। एंड आई थिंक कुछ क्वेश्चंस लोगों के भी आ रहे हैं, वांट टू टेक दैट। So I think Shanti Sagar is asking, sir, how we can improve business and get success through spirituality. So what is your opinion? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप दलाल हैं, ठीक है ना? है Okay. ना, दलाल। हाँ. पहले तो प्योरिटी रखिए कि मैं दलाल हूँ। बिजनेस मत कीजिए, दुनिया में एक्सेलेंस लाने की कोशिश कीजिए। दुनिया में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक नौकरी कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, 5 साल से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं दे रहा। मैंने लिंक्डइन पे ढूंढी है, मैंने प्लेसमेंट कंसल्टेंट को फोन किया है, मैंने सीवी में हर तरीके के विचित्र विचित्र चीजें डाल दी हैं, मैंने दुनिया का हर अतरंगी ट्राई कर लिया है कि मुझे नौकरी मिल जाए, ठीक है? और मैं पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञान व्यान बड़ा बांटता हूँ, बड़ा हीरो हूँ। और मेरी एक मेड है जिनका नाम है सुवर्णा जी। Okay. अनपढ़ है, सिंगल लेडी है, ज्यादा गुस्से में रहती है, ज्यादातर बातचीत नहीं करती, और उनकी जॉब ऑफर्स की भरमार लगी रहती है। उनका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, उनका कोई भी सीवी नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। और मेरे बॉस ने तो फिर भी डांट लगा देनी अगर मैं छुट्टी मांगू, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती सुवर्णा जी को कभी भी बोलने की कि आप छुट्टी ना लो। उनको जितनी जब छुट्टी चाहिए ले सकती हैं, वो हमारे घर में कुछ भी कर सकती हैं, हमारे घर की चाबी है उनके पास। क्योंकि सुवर्णा जी जैसी वैल्यू मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे पाया जो वो मेरे घर में दे पाती है। कमी मुझ में है। आपको बिजनेस इंप्रूव करना ना, मैं एक ही बात बोलूंगा जिंदगी में, मैं बोलता हूँ, प्लीज ज्वेलरी के सेल्समैन मत बनिए, गोल्ड बनिए। That's a very beautiful आपको line. पता है स्टीव जॉब्स जैसा बदतमीज आदमी नहीं था दुनिया में। आप स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़िए, उसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं। उससे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। बदतमीज और वाहियात आदमी नहीं था कोई। उसको कोई तमीज नहीं थी बात करने की, वो धोखेबाज था एक नंबर का। लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा लाया मार्केट में कि आप हाथ जोड़ के देते हो आज भी। टोटली। इसलिए किडनियां अगर बेच आपको के बिजनेस देते हैं। बिजनेस क्या होता है? प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट में दम है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई होप शांति सागर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एंड साथ ही साथ मेरा भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने स्पिरिचुअलिटी की बात की, डील एंड ऑल की बात की, तो एक और चीज आता है कि ह्यूमंस में सबसे ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर सपोज मैं आपकी बात करते, इज देयर समथिंग व्हिच डिस्ट्रैक्ट यू? कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप कुछ कर रहे हो, देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो अगर वो होता है तो वो क्या, वो एक या देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि कुछ लॉज हैं लाइफ के, आप उनसे दूर रहते हैं। मैं अभी गीता क्लास पढ़ रहा था, हमारे को आते हैं, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, इवन यू आर टेम्परेरी, ठीक है? लेकिन हमें शौक है इटर्निटी का, क्योंकि डीप डाउन हम टेम्परेरी हैं। हमारी सब कॉन्शियस लेवल पे हम इतना डरते हैं टेम्परेरीनेस से कि हम हर चीज परमानेंट चाहते हैं। जैसे ही आपको प्यार होगा, आप पहली चीज अपने प्रेमी या प्रेमिका को बोलोगे, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना कभी, ठीक है ना? या जैसे ही आपको बैंक में पैसे डालोगे, आप फिक्स डिपॉजिट करने की कोशिश करोगे, भैया ये मेरे है ना, ये कहीं जाएंगे तो नहीं।
आपको खरीदना है, आपको पकड़ना है, आपको जकड़ना है, क्योंकि जिंदगी टेम्परेरी है। आप जिंदगी को एक्सेप्ट कीजिए। ये शक्ल, ये सूरत, ये अहंकार, ये हम्म। रिश्ते, ये लोग, ये बदनामी, ये नाम, ये सब चले जाएगा समय के साथ। कुछ डिस्ट्रैक्शन इज व्हेन वी आर अवे फ्रॉम रियलिटी। मेरे को आज तक समझ नहीं आया है कि अगर आपको भूख लगती है तो क्यों कहते हो कि मुझे भूख नहीं लगी है। हम्म। आप उस शब्द को डिस्ट्रैक्शन कहते ही क्यों? आप क्यों नहीं मानते कि अभी मेरी वो फेज ऑफ लाइफ है जहां मुझे ये चीजों का मोह है? अपनी वासनाएं पूरा कीजिए, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। सच्चाई से कीजिए, ऑनेस्टी से कीजिए। हम अपनी वासनाओं को दबाते हैं। जिसने को भूख लगी है वो खाना नहीं खाता, जिसने कोई और काम करने हैं वो काम नहीं करता। अंदर वासनाएं भूखे प्यासे रहते हैं। वो भूख प्यास में आदमी जो है फिर जो काम करने बैठता है वो ध्यान से कर नहीं पाता। आप भूखे पेट पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, फिर कहो यार मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। यार पेट भर के खाना खा लो, फिर नींद आएगी, फिर सो जाओ, फिर उठो। ना भूख लगी होगी ना नींद होगी, पढ़ाई अपने आप होगी, क्यों नहीं होगी? सो इट्स दैट बेसिक फंडामेंटल trying to be away from what nature has made you, I think is the biggest cause of distraction. ओके, सो आई थिंक बताओ ये यार। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे मुझे एक और क्वेश्चन, ज्यादा नहीं हो, मुझे एक और क्वेश्चन, दैट इज जैसे कि डिस्ट्रैक्शन की बात हुई, तो एक होता है ना लिविंग इन दैट मोमेंट, क्योंकि जैसे कि सब कुछ जिंदगी भर तो चलने वाला नहीं है। तो एक होता है कि लिविंग इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। अब ये क्या है? बोल तो दिया कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, बट व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू कि क्या इसका एक्चुअल मोमेंट में रहना एक्चुअल सीखना? एक्चुअल मतलब वही है जो है। हम्म। मेरे को लोग आगे कहते हैं कि सर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। मैं कहता हूँ अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप फेल हो चुके हो लाइफ में। हम्म। देखिए, आपको कभी जिंदगी में एंजॉय किया? ये बच्चा है, इसने कभी पूछा है मेरे बचपन का पर्पस क्या है? एग्जैक्टली। जब आपने आप किसी चीज में, ये हनीमून पे हस्बैंड वाइफ जाते हैं, कभी फोन करके पूछते हैं हमने शादी क्यों की? वो पूछेगा ही तब जब शादी में गड़बड़ है। एग्जैक्टली। जो खाना नाउ आई खा रहा गेट होता है, जो खाना खा रहा होता है बढ़िया टेस्टी, उसने कभी पूछा है यार खाने का क्या पर्पस है? सही बात है। हाँ। अगर अगर आप जिंदगी में जिंदगी उस मोमेंट पे भूल नहीं पा रहे, छोड़ दो उस मोमेंट को, वो बर्बाद हो चुका है। ओके। और ढूंढो ऐसा मोमेंट जो आपको भुला दे वो मोमेंट। इसीलिए शराबे पीते हैं ना लोग, क्यों पीते बिल्कुल। हैं? भुलाने के लिए ही पीते हैं ना। बुलाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, कुछ हम सब के लिए कुछ चीजें होती है जब वो हमें भुला देती है। आप मैं मेरे साथ मेरा बेटा होता है, मैं देखता हूँ जब आईपीएल मैच चलता है, हम्म। या आज सुबह से क्रिकेट खेलने जाना था, तो हम्म। वैसे ये दोपहर को 1 बजे स्कूल शुरू होता है तो रोता पिटता है। और आज सुबह 6:30 बजे ये क्रिकेट खेलने चला गया, नींद भी भूल गया। हम्म। दैट इज लिविंग इन द मोमेंट। एग्जैक्टली So एग्जैक्टली। leave things that if you have to, if you have to do it, don't do हम्म। it. If it just happens, then do it. इसीलिए तो प्यार क्यों कहते हैं लोग प्यार में होना चाहते हैं। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुली, आपने इतने प्यार से उसको कोट किया, रिलेटिंग विद रेयान ऑल्सो। सो आई थिंक गाइस, आप लोगों को भी अगर ये आंसर समझ में आ गए, बिकॉज रियली डीप कॉन्वर्सेशन है, आई बी सेइंग फॉर मी इट्स अ डीप कॉन्वर्सेशन, एंड सर ने बहुत ब्यूटीफुली रेयान का एग्जांपल दे के भी व्हाट इज दैट लिविंग इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या है, क्या होता है। सो थैंक यू सर फॉर आंसरिंग, इतने प्यार से, इतने ब्यूटीफुली आपने हर एक क्वेश्चन को बोलते हैं ना, एक वो कहानी की तरह समझाया है, ताकि एक बिल्कुल ही मेरा जो ईयर्स लाइक ओके नेक्स्ट क्या होने वाला, नेक्स्ट क्या है, आगे क्या हुआ। सो थैंक यू, यू आर अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टेलर, एंड ऑब्वियसली you are a writer, you are an author, so you know that skill. थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई रियली रियली, काफी क्वेश्चंस और मेरे जहन, आई डोंट वांट कि ये 1 घंटा से ज्यादा एक्सटेंड हो जाए।
क्योंकि बहुत टाइम लिमिट है। मजा थैंक आता यू है, फॉर मजा बीइंग हियर। मुझे काफी मजा आया, काफी कुछ सीख। सेंस ऑफ ह्यूमर आपकी सॉलिड है, जैसा कि लोग बोलते हैं की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक गाइस कैन सी, आई थिंक 1 घंटे से सात लोग टिके हुए हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस। आई एम रियली हैप्पी कि सर कनेक्ट हुआ एंड यू अग्री कि आप आए सेशन पे अपनी बातें शेयर करें। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट आपने ये सेशन किया एंड थैंक यू, इट वाज रियली लवली होस्टिंग सर। एंड यस रेहान टू यू आर द क्यूटेस्ट। वो काफी एंजॉय कर रहा है फिलहाल बैठे बैठे। So thank you sir for being here and I wish कि next time फिर से एक और सेशन करूँ एंड भगवत गीता के ऊपर और भी मैं चाहती हूँ कि आप और कुछ उसके छोटे छोटे जो अंश है वो जरूर लेके और हमें अच्छे से बताएं। आई एम eager कि नेक्स्ट सेशन भी हम करें, जल्द ही करें। सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज रियली रियली अमेजिंग होस्टिंग यू। थैंक यू सो मच। यू आर सो स्वीट एंड काइंड। आप इतनी तारीफ करते हो। नो नो, आपके तारीफ की जिंदगी बात में जो भी आएगा उसे नहीं डायबिटीज हो जाएगा, इतनी स्वीटली बात करते हो। नहीं, ये दिल से बहुत। निकल रही है ये मेरे। थैंक यू, नहीं थैंक यू, बहुत अच्छी बात आई है, अगर आपको रियली अच्छा लगा थैंक यू सो मच। जब ठीक है, एंजॉय कर रहा है कोई तो कभी कुछ नहीं पूछेगा कि क्यों कर रहा है। वो देखो। ठीक एग्जैक्टली। है, See, देखो इसे इसे सार समझ में आ गई अच्छे से कि व्हाट इज इट, क्यों बच्चों कर को रहे आता हैं। है, बच्चे बच्चे भगवान बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ही ये आल्सो बार नोस। पापा ने ऑलमोस्ट सेम प्रेजेंटेशन दिया है, अच्छा, बट मेरे ऑलमोस्ट लिए हर नया हर था, मुझे बहुत मजा आया। आपके लिए नया। नहीं मैं गीता तो हर वही है बार बेटा, आता हूँ। गीता तो वही है ना, गीता तो मैं मैंने भी भी लिखी मैं है। भी यहाँ बैठ के यही लाइंस बोलती हूँ, यही बातें करती हूँ। सो इट्स सेम, दिस इज आवर वर्क। बट लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को मजा आता है। सो थैंक यू सर ओके, बीइंग हियर एंड थैंक यू थैंक यू, रेहान, काफी मजा आया हमें तुमसे भी बात करके। सो थैंक यू, बाय गाइस, गुड थैंक नाइट। यू, बाय बाय, हैप्पी न्यू बाय ईयर, बाय बाय, बाय। हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। ईयर। बाय। सो आई थिंक यू गाइस लव द सेशन, काफी मुझे मजा आया सेशन में। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अब तो आप पूछ नहीं सकते, लेकिन यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर का आपको कॉन्वर्सेशन कैसा लगा एंड जो भी बातें उन्होंने किया आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, आई रियली एंजॉयड दिस एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।